आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ओवर टाइम इन कॉस्ट रेकर्ड्स। ओवर टाइम इन कॉस्ट रेकर्ड्स, हाउ टू कैलकुलेट ओवर टाइम इन कॉस्ट रेकर्ड्स, right? So this is your lecture number 2017, and this topic already appeared in December 2017 examinations, which is carries up to 6 marks. So very important for your upcoming examinations. So let's get started without wasting any further time, right? So sir, what is the meaning of overtime and how to calculate overtime in cost records? Sir, ये overtime क्या होता है? Overtime is nothing but you can say one type of premium. Overtime premium is paid to whom? To workers for the extra time work than the normal working hours, which is specified in the Factory Act 1948 or work agreement with the union, right? So overtime क्या है ना? Overtime premium is paid to the workers for the extra time work than the normal working hours specified in the Factory Act 1948 or the work agreement with the union, right? So extra time is paid at a higher rate than the normal time rate. For example, if a worker works beyond 8 hours in a day, or you can say 48 hours in a week, he is paid with double the wages for the extra time he has worked, right? So that is called overtime work. Overtime क्या है? And the extra time is paid at a higher rate. Extra time is paid at a higher rate than the normal time rate. For example, you can say if a worker works beyond 8 hours in a day or 48 hours in a week, he is paid with double the wages for the extra time he has worked, right? So overtime दो तरीके के होते हैं. एक तो नॉर्मल वेजेस दिया जाता है फॉर एक्स्ट्रा टाइम, एंड ऑल्सो सेकेंड वन इज एडिशनल वेजेस पेड फॉर द ओवर टाइम वर्क, राइट? सो आज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 ये कहता है कि एम्प्लॉय कॉस्ट, राइट? एम्प्लॉय कॉस्ट. So as per CAS 7, that is Employee Cost Limited Revision 2017, overtime premium shall be assigned directly to the cost object. Overtime premium assign होता है directly to cost object, or you can stated as overheads depending on the economic feasibility and specific circumstances requiring such overtime, राइट? CS 7 ये कहता है, CS 7 एम्प्लॉय कॉस्ट ये कहता है कि ओवर टाइम जो है, ओवर टाइम का प्रीमियम को असाइन किया जाता है डायरेक्टली टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, राइट? डायरेक्टली टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक फेजिबिलिटी and specific circumstances requiring such overtime, right? Then in second point, when overtime is work due to exigencies or you can say urgencies of the work, then the basic normal payment is known as direct labor cost and charge to production. इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड चार्ज टू प्रोडक्शन और कॉस्ट यूनिट on which the worker is employed. Whereas the amount of premium, that is extra amount, is treated as overhead. जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसे कहा जाता है ओवरहेड. फिर कहा गया थर्ड पॉइंट में कि इफ ओवर टाइम इज स्पेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, अगर कस्टमर के रिक्वेस्ट से अगर एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम स्पेंड होता है एक वर्कर के द्वारा, देन द एंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग ओवरटाइम प्रीमियम, ये सबको कहा जाएगा डायरेक्ट वेजेस, ठीक है? एंड शुड बी चार्ज टू द जॉब. डायरेक्ट वेजेस कहा जाएगा एंड ये चार्ज होगा डायरेक्टली टू हुम? टू जॉब. थर्ड पॉइंट में ये कहा गया कि अगर ओवर टाइम स्पेंड होता है कस्टमर के रिक्वेस्ट के हिसाब से, अगर ओवर टाइम स्पेंड होता है कस्टमर के रिक्वेस्ट के हिसाब से, देन उस टाइम में क्या होगा? देन द एंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग ओवर टाइम प्रीमियम,
including overtime premium is treated as direct wages and should be charged to the specific job. फिर कहा गया फोर्थ पॉइंट में कि अगर ओवर टाइम वर्क होता है ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी, अगर एक एम्प्लॉई या फिर एक वर्कर का कैपेसिटी नहीं है जितना नॉर्मल वर्क करने के लिए, देन एज ए जनरल पॉलिसी ऑफ द कंपनी, then the total amount paid is known as direct wages, which is computed at the estimated rate based on the figures of the previous year. Based on the figures of the previous year. फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया कि when overtime is worked due to lack of capacity as a general policy of the company, then the total amount paid is known as direct wages, which is computed at the estimated rate based on the figures of the previous year, right? So then इसके नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया, फिफ्थ पॉइंट में, ओवर टाइम वर्क ऑन अकाउंट ऑफ द abnormal रीजन. अगर ओवर टाइम वर्क होता है विथ abnormal रीजन्स मतलब abnormal conditions such as flood, earthquake, etc. अगर ये सब abnormal रीजन से ओवर टाइम स्पेंड होता है, देन दिस शुड नॉट बी चार्ज टू द कॉस्ट बट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये कॉस्ट को चार्ज नहीं होगा, रादर इट इज चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, सॉरी इफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स आर मेंटेन. अगर ओवर टाइम ओवर टाइम स्पेंड होता है विथ abnormal कंडीशंस का मतलब क्या है? अगर फ्लड हो गया, अगर earthquake हो गया एसेट्रा, अगर ये सब हुआ तो दिस शुड नॉट बी चार्ज टू द कॉस्ट बट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज होगा इफ इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंट्स आर मेंटेन. इफ इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंट्स आर मेंटेन, राइट. फिर कहा गया, इट विल थस बी सीन दैट ओवर टाइम इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ इंक्रीज्ड वेजेस एंड शुड बी रिसोर्टेड टू ओनली व्हेन एक्सट्रीमली एसेंशियल, राइट. सो लास्ट में ये कहा गया कि ओवर टाइम इन्वॉल्व क्या होता है? पेमेंट ऑफ इंक्रीज्ड वेजेस एंड शुड बी रिसोर्टेड टू ओनली व्हेन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, व्हेन एक्सट्रीमली एसेंशियल और व्हेन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, राइट. सो ओवर टाइम ये था आपका थ्योरी पार्ट. इसके ऊपर एक कैलकुलेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम इन कॉस्ट एकर्स, राइट. सो ये आपका थ्योरी के लिए है. ये वीडियो क्लासेस आपको थ्योरी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए है. उसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करूँगा ओवर टाइम के ऊपर. देन यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली अबाउट दिस टॉपिक. सो दिस इज इट ऑल अबाउट ओवर टाइम रिकॉर्ड, ओवर टाइम कैलकुलेशन एंड रिकॉर्ड इन कॉस्ट, राइट. सो पहले आपको फर्स्ट पॉइंट में ये लिखना पड़ेगा कि एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, दैट इज एम्प्लॉई कॉस्ट लिमिटेड रिवीजन 2017, ओवर टाइम प्रीमियम शैल बी असाइन directly to the cost object, shall be assigned directly to the cost object or known as overheads depending on the economic feasibility and specific circumstances requiring such overtime, right. Then फिर कहा गया कि when overtime is worked due to urgency, अगर urgencies के हिसाब से overtime work किया जाता है, then the basic normal payment is known as direct labor cost and charged to production or cost unit on which the worker is employed, right. Whereas the amount of premium that is extra amount is known as overhead. extra amount को कहा जाएगा कि overhead, right. फिर थर्ड पॉइंट में ये कहा गया कि अगर ओवर टाइम स्पेंड होता है कस्टमर के रिक्वेस्ट के हिसाब से, देन वहाँ पर क्या होगा ना, द एंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग ओवर टाइम प्रीमियम इज नोन एज डायरेक्ट वेजेस एंड शुड बी चार्ज टू द स्पेसिफिक जॉब, राइट. देन फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया कि व्हेन द ओवर टाइम इज वर्क
due to the lack of capacity of the employee as a general policy of the company, then the total amount paid is known as direct wages, which is computed at the estimated rate based on the figures of the previous year. क्लियर. देन फिफ्थ पॉइंट में फिर कहा गया अगर ओवर टाइम वर्क होता है ऑन अकाउंट ऑफ abnormal कंडीशंस. abnormal कंडीशंस क्या है? अगर फ्रॉड हो गया, एर्थक्वेक हो गया, ये सब रीजन में अगर ओवर टाइम स्पेंड होता है देन दिस शुड नॉट बी चार्ज टू द कॉस्ट बट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंट्स आर मेंटेन. राइट. देन लास्ट में ये कहा गया इट विल थस बी सीन दैट ओवर टाइम इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ increased wages and should be resorted to only when extremely essential. Right. So this is it all about overtime, calculation of overtime in cost occurs. So thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy study.